For now, let's move on and put the spotlight on the other big story again surrounding the national capital, the protests over farm laws. Now, there was a big narrative being built, a lot of expectation amongst people that after the violence on Republic Day, that's going to pretty much dent and end the farmers' protest, and that they're all going to go home or be picked up and put behind bars for the violence that happened. But while it did lower in intensity for a bit, it has now begun to turn into another kind of deadlock and face-off. In fact, today it got ugly again. Today is the day when the borders of the national capital saw protesters claiming to be locals of that area, demanding that the farmers vacate their borders. So they were carrying flags. They said, we have come to get this place vacated. It's creating problems for us. We are not okay with people who carry out violence and don't respect the national flag in our country. We don't know how they actually reached so close to the protest sites, because in the last 2 days, since the Republic Day violence, these protest sites, whether at Singhu or Tikri or Ghazipur, have been heavily fortified, especially at Singhu. The barricading that has been done a couple of kilometers away and before you reach the site. Yet, these counter-protesters, parallel groups, managed to reach the site and clash with the farmers over there. And when the police finally tried to intervene and stop it, it got further out of control and ugly. So stones were pelted. Two sides then actually clashed. And these counter-protest guys who landed up there added to the chaos. Police had to resort to lathi charge and tear gas shells on both sides. In between, a policeman got injured. His hand was badly cut off and bleeding. And the injured protesters also had to be carried away. So there were injuries on both ends. Then more additional security was called in. Gradually, by afternoon, these parallel groups vanished, left for their own homes after intensifying and adding to the tension at the location. But while all of this is happening, viewers, some of the farm leaders like Rakesh Tikait called for more farmers to join them. And so while yesterday there weren't too many people at Ghazipur, those numbers increased overnight and this morning as more people landed up to join the farmers' protest. So once again it seems to have gathered its wits, gathered its people and reignited with not showing any inclination of backing off. What's the way forward is the big question I'm asking this evening. Is the only way to stop this tension, quell this tension, stop the face-off and end the protest, a dialogue? Should the government step in and restart the dialogue with the farmers? Let's say good evening to Abhimanyu Kohar, National Coordinator for the Rashtriya Kisan Mahasangh, Chaudhary Savit Malik, National President for the Bharatiya Kisan Union, Sudesh Sharma, spokesperson for the BJP, and Satyaprakash, leader of the JDU. This is a straight-up government, the NDA versus the farmers who are protesting conversation. और मैं अभिमन्यु कोहर जी से शुरू करना चाहती हूँ. अभिमन्यु कोहर, अब ये आगे कहाँ जाएगी बात? हमारा सवाल आज ये है कि क्या ये दंगे जो हो रहे हैं, वायलेंस जो हो रहा है, इस सब को रोकने का एक ही तरीका है कि सरकार वापस से आप लोग से बातचीत शुरू करे? देखिए तन्वी जी, हमारा पूरा विश्वास लोकतांत्रिक प्रणाली में है और लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत के जरिए ही निकलता है. तो जो अभी एक ये डेडलॉक की सिचुएशन बन गई है, डेड एंड की सिचुएशन बन गई है, इसका समाधान बातचीत के जरिए ही होगा. और किसान समाज पहले दिन से बातचीत के लिए तैयार है और यदि आगे सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाएगी तो हम बातचीत के लिए निश्चित तौर पे जाएंगे. लेकिन हमारा निवेदन सरकार से ये है कि सरकार खुले मन और बड़े दिल से देश के अन्नदाता की भावनाओं को सुने और उनका सम्मान करे. जब देश का अन्नदाता 3 कृषि कानून नहीं चाहता है तो ये कृषि कानून उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपे गए हैं? जब देश का अन्नदाता एमएसपी गारंटी कानून की मांग करता है तो वो उसे क्यों नहीं दी जाती? जबकि मैं याद दिला दूं, 2011 में
प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे तो खुद इन्होंने कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में कहा था कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने वादे से ये क्यों मुकर रहे हैं? और जहां तक बात रही जो ये हिंसा की बात करी, देखिए जो कल पूरी रात में गाजीपुर में था, गाजीपुर बॉर्डर पे था और आज पूरा दिन में सिंगू बॉर्डर पे था। तो इस हिंसा की बात करें तो कल गाजीपुर बॉर्डर पे भाजपा के 2 विधायक अपने कुछ समर्थकों को लेकर वहां पर पहुंच गए थे, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उन लोगों के पास लाठियां थी, उन लोगों के पास पत्थर थे। और दूसरी तरफ यदि आज की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा से एक अलग स्टेज लगी हुई है सिंगू बॉर्डर पे। तो उस स्टेज के आसपास कुछ लोग बीजेपी और आरएसएस के समर्थक कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और वहां पे आपस में क्लैश हुई, पथराव किया गया किसानों के ऊपर और उसके बाद टकराव में कुछ लोगों को चोटें आई हैं। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक पुलिसकर्मी भाई को भी चोट लगी है। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं तन्वी जी, हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। चाहे बात करें 26 जनवरी वाली घटना की या आज की घटना की, कोई भी व्यक्ति हमारे पुलिस वाले भाइयों पे हाथ उठाता है तो उस व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों ने 26 जनवरी को देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। देश का किसान समाज राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करता है। हमारे लिए हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे सर्वोपरि है। Mr. Siddesh Verma, is that the only way forward? I mean, as the protests are continuing, we've stepped up on the security that's adding to the blockages on the road, but the farmers are not going to be going back home, it seems. They're only, again increasing in numbers. So what do we do? Let me start answering the issues raised by gentlemen. You see, first of all, he said थोपा गया है कानून। कानून किस पर थोपा गया है? ये तो एक पैरेलल सिस्टम दिया गया है। आप मत लीजिए इस सिस्टम को। आप किसानों को बोलिए नहीं हम इस सिस्टम में जाएंगे ही नहीं, सरकार ने कानून दिया हम लेंगे ही नहीं। सरकार फोर्स तो कर नहीं रही है। इट्स एन अल्टरनेटिव रूट विच यू मे और मे नॉट यूज डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। तो थोपा गया बोलना गलत है। दूसरी बात पर आते हैं, आप बोले जो भी किया सजा लिया जाए। आपने टिकैत साहब को देखा नहीं किस तरह से भड़का रहे थे, आ जाओ नहीं तो तुम्हारी जमीन चली जाएगी, गोली चल जाएगी। जो भड़काऊ भाषण दिया तो उनको फिर जवाब देना चाहिए ना। उससे बचने के लिए रोने लगेंगे और समर्थन जुटाएंगे, ये तो गलत बात है ना। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। लॉ के अंदर आप भी आते हैं। ऐसा तो नहीं टिकैत जी के बिना आपका चलेगा ही नहीं। अगर टिकैत जी पर ही टिका हुआ है सारा तो उन्हीं को नेता बना दीजिए। अब आता है तीसरा हिस्सा, बातचीत किससे करें आप बता दीजिए। जो टीवी पर आके किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उन 40 लोगों से जो भाग गए थे जब एजिटेशन हो रहा था, उनको वॉलंटियर्स अपने रखने चाहिए थे। जब उन्होंने एक अंडरटेकिंग देने के बाद वॉलंटियर नहीं रखा, संभाला नहीं, वो अपनी नेतागिरी को छोड़ के भाग गए और फिर अचानक किससे बात करें ये बताइए ना। राहुल गांधी जी से बात करें, वो तो भाग गए चुके हैं पार्लियामेंट से भी। किससे बात करें सरकार ये बताइए। आपसे बात करें, बीकेयू के नेता के रूप में आप आ रहे हैं, आपकी है एक्सेप्टेबिलिटी सब में। अरे किसी नेता चुनिए, स्टीयरिंग कमेटी चुनिए जिसकी बात आप मानेंगे। चौधरी समित मलिक से पूछते हैं। चौधरी समित मलिक, चार किसान यूनियन आपके आए हैं और आपको ब्लेम किया है। बताइए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, अभी पता था इनको। नहीं, आप बताइए कि सरकार से बातचीत करेगा तो कौन करेगा, कौन है लीडर? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि जिस दिन रैली थी उस दिन तो जब दंगे हुए तो कोई लीडर आसपास दिखे नहीं। देखो, ये लोग खाली झूठ बोलने का काम करते हैं और इन पे अपना कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जब इनके ऊपर कोई जिम्मेवारी आती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देते हैं, कभी किसान के ऊपर डाल देते हैं, कभी दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अरे मेरे भाई कुछ तो शर्म कर लो। शर्म आप करोगे नहीं। झंडा उतारा आपने, झंडे का अपमान आपने खराब कर दी जो 72 सालों में कभी नहीं हुई। आप लोगों ने अपने एजेंट भेज कर, आप एक बात बताइए, जिस लाल किले पर 2 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा फहरा रहे थे, जिसके लिए हमारी लाल किला, रेड फोर्ट का मतलब होता है किला, किले को कोई भेद नहीं सकता। किले को भेद हमारी विदेशी ताकतें आई, वो इस किले को नहीं भेद पाई और पागल हाथी को ले आए। ओके, वन एट अ टाइम, एक एक करके। हाँ, मलिक जी अपना पॉइंट खत्म करें, देन सुदेश शर्मा कैन रिस्पॉन्ड। दरवाजे नहीं तोड़ सकता और उस टाइम वहाँ चिड़िया परिंदा पर नहीं मार सकते और वहाँ पे कुछ हुड़दंगी जाते हैं और उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रेड कारपेट बिछा दिए जाते हैं और उनको कहते हैं आप ध्वज का अपमान करिए। उसके बाद वो वहाँ सेल्फी लेते हैं, उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं और वहां से टहलते हुए निकल जाते हैं। आप लोग क्या कर रहे थे?
शर्म नहीं आती आपको? देख लिए, यही इनका लैंग्वेज है, यही इनका लैंग्वेज है। यही टिकैत ने बोला था गोली क्यों नहीं मारी, यही राहुल गांधी का लैंग्वेज, यही इनका लैंग्वेज है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? हम लोगों सिखा दीजिए इनको, 65 दिन तपस्या की है सिखा दीजिए इनको। करने के वो लिए भीड़ कंट्रोल होते बिना गोली चलाए हुए, ये बताइए। किसान शहीद हो गए उसको कंडेम करने की जगह, ये बोलने की जगह पीकेयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टिकैत को ज्वाइन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन और जो उसके खिलाफ FIR ठीक है, ओके मैं एक पॉइंट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे अगर आप दोनों इतना एक दूसरे के ऊपर बात करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। हमारा धरना चल रहा था बड़ोद के बागपत में, रात के अंधेरे में पुलिस आती है, हमारी बत्ती काटती है और 11 बजे ऐसे लाठियां चलाती है जैसे वहां जानवर हो, और ये बात करते हैं यहाँ बैठकर। अरे जो शांतिपूर्वक, दूसरी बात है, मैंने जो प्रश्न किया है तन्वी, उसका आंसर इनके पास नहीं है। ये किसान नेता है क्या, कहाँ थे ये बताइए, और नेता है तो पहले इन्वेस्टिगेशन फेस करिए, करेंगे इन्वेस्टिगेशन। सुदेश वर्मा, देन टेल मी, सुदेश वर्मा, अगर राकेश टिकैत और बाकी नेता एक मिनट संबित मलिक, अपने गुंडे भेज दिए। चौधरी संबित मलिक जी रुक जाइए। अरे गुंडा भेजने का काम आप लोगों का है, हम लोग का नहीं है। पूरा दुनिया देखा है भारत का बेइज्जती होते हुए आपके गुंडों द्वारा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए। Sudesh Verma, here is my two-layered question to you. Can I please speak now? Mr. Sudesh Verma, there are two questions. One is, if the government believes that these Kisan leaders, farmer leaders are the ones responsible for the violence and they must be held accountable, then how can you have a conversation with them? Then who will you have the conversation with? Does that mean that this is the end of the road for conversation? Secondly, जो बात अभी उठी यहाँ पे, उस पे ही मैं ऐड करती हूँ कि लाल किले की सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हुई और वो कैसे वहाँ पहुँच गए और उन्हें हमारा तिरंगा डेसिक्रेट किया और लाल किले को डेसिक्रेट किया, वो तो सवाल है ही। आज कैसे ये तोड़म ताड़ी और पत्थर मारना शुरू कर दिया? जिस एरिया में 3 लेवल की बैरिकेड्स, सीमेंट ब्लॉक्स 2-2, 3-3 किलोमीटर पहले लगे हैं, ये बाहर से दूसरे लोग कैसे पहुंच गए प्रोटेस्ट साइट तक? वहां की सिक्योरिटी क्या है फिर? देखिए तन्वी जी, पहला प्रश्न जो आपने पूछा, मैं इतना ही बोला कि जिसके खिलाफ FIR लॉन्च हुआ है उनको इन्वेस्टिगेशन फेस करना चाहिए। आप कानून से ऊपर नहीं है, पर FIR किसी के भी खिलाफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून आपके साथ है। सुदेश वर्मा, the FIR is not against any accused. FIR doesn't name any accused. किसके खिलाफ है FIR? फेस करना। टिकैत अगर अक्यूज्ड है तो टिकैत को जाना नहीं है वो अक्यूज। मुझे दिखाइए कौन से FIR में राकेश टिकैत को अक्यूज बना दिया गया है। सबके नाम लिखे गए हैं कहानी सुनाने में, अक्यूज ऑफिशियली कोई नहीं है। जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ये तो आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट से अपने आप को बरी कराइए। एक प्रोसेस है ना, घटना हुई है, वो क्या उसका वीडियो हमारे पास है, उसमें क्या हुआ, पुलिस खड़ी हुई है और जिस तरह से नो आई वांट टू लिसन टू, एक मिनट मुझे सुदेश वर्मा का जवाब सुनने दीजिए। चौधरी मलिक, एक मिनट रुक जाइए। सुदेश वर्मा का मैंने 2 सवाल पूछे, उनको जवाब दोनों के देने दीजिए। हाँ, दूसरा बात, जिस तरह से दंगाइयों ने तोड़ा है बैरिकेड, सारे चीज तैयारी करके आए थे, जिस तरह से बैरिकेड तोड़ा है, क्या वो किसान थे? ये बताइए। आज कैसे चले गए फिर प्रोटेस्टर्स? वो भी तो किसान नहीं थे। किया था, पुलिस तो बहुत मुश्किल से डील की और उसके बाद भी गोली नहीं चलाई। हम शुक्रगुजार हैं, भारत का बेइज्जती होते होते भी बच गया थोड़ा। और फिर आज क्या हुआ सुदेश वर्मा? तीसरा प्रश्न आपने जो पूछा, आज की बात है, वो जाके गांव वालों से पूछिए। हम वायलेंस को कभी भी साथ नहीं देंगे। जिसको भी प्रोटेस्ट करना है, वायलेंस को नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि गांव वाले परेशान हो रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है इनसे, क्योंकि इन्होंने तिरंगा का बेइज्जती किया है। तो हर व्यक्ति ये रिएक्ट कर सकते हैं लॉ के खिलाफ, वो रिएक्ट नहीं कर सकते इनके दंगई रूप के खिलाफ। ये बताइए। तो आप उनको दंगई, किसानों को आप दंगई बोल देते हैं, लेकिन जब ये लोग जो भी थे खुद को जो वहाँ के लोकल्स बोल रहे हैं और चले गए वहाँ पे और पत्थर फेंकने लगे, वो नहीं है गुंडे, वो दंगई नहीं हुए। वायलेंस किया उसके खिलाफ एक्शन हो। हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। करेक्ट, ओके सत्य प्रकाश, लेट मी ब्रिंग इन उसको कंडेम करना चाहिए, कानून के सामने आना चाहिए। ओके, लेट मी ब्रिंग इन द फोर्थ पैनलिस्ट मिस्टर सत्य प्रकाश ऑफ द JDU। आगे जाने का क्या रास्ता है? नहीं तो इस तरीके से अनरेस्ट, फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ, स्टोन पेल्टिंग, यही सब चलता रहेगा। इशू रिजॉल्व कैसे होगा? हाउ डू वी रिजॉल्व दिस इशू? इज द ओनली वे फॉरवर्ड रीस्टार्टिंग डायलॉग? Dialogue is an integral part of democracy. Democracy needs always a kind of dialogue. The parliament is meant to establish the dialogue and the confidence of the farmer.
भारत के सभी किसानों के, भारत के सभी किसान संगठनों के, गांव-गांव में फैले किसानों के पहले विश्वास जीतना होगा और विश्वास के माहौल में डायलॉग होगा। संवाद और विश्वास के माहौल और हिंसा के माहौल में नहीं हो सकता। डायलॉग और वायलेंस एक साथ नहीं चल सकता। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने हिंसा की है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। वो कौन लोग थे उसकी जांच पड़ताल से ही पता चलेगा। दूसरा, हम ये नहीं कह सकते कि जितने किसान आए थे सब हिंसा करना चाहते थे, ऐसा नहीं हो सकता। और भारत में कोई आंदोलन मैंने आज तक देखा नहीं कि जिसमें हिंसा नहीं हुई हो। तो तुलसी का एक दोहा है रामचरितमानस में, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लई। जो हो गया है उसको बिसारना पड़ेगा और जिन्होंने हिंसा की है, जिन्होंने लाल किले पर डिसेक्रेशन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन किसानों का भरोसा जीतकर उनसे बातचीत करने के बाद ही कोई समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन विपक्षी दलों ने, मैं एक शब्द जोड़ना चाहता हूं, विपक्षी पार्टियों ने एक जिद का माहौल बनाया है। एडामेंट नहीं चलता डायलॉग में, कुछ कदम आप पीछे हटिए, कुछ कदम वो पीछे हटे। एक एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। सहमति का सिद्धांत डेमोक्रेसी का है। सहमति के साथ देश आगे बढ़ता है और किसानों के भरोसे को जीतने के बाद ही कोई संवाद का माहौल खड़ा हो सकता है और संवाद ही एक रास्ता है। बिना संवाद के दुनिया में कभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ और अगर इस तरह चलता रहा तो अविश्वास का माहौल बनेगा और संवाद की स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन सत्य प्रकाश जी, वही तो सवाल आपके एलआई बीजेपी भी पूछ रही है कि अगर संवाद कर रहे हैं तो किससे करें संवाद? कौन है लीडर? नहीं, किसानों के जो भी लीडर्स हैं, किसान संगठन के जो लीडर हैं, उनको मिला करके सरकार ने तो कहा कि चलिए बैठकर बात करेंगे, 1.5 साल इस कानून को भी निलंबित कर देते हैं और मिलजुल कर इस पर काम करेंगे। किसानों को भी यह समझना पड़ेगा कि सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा और सरकार को भरोसा जीतना पड़ेगा, तभी किसान भरोसा करेंगे। तो दोनों ही स्थिति में यदि जिद पर अड़े रह जाएंगे तो जिद में तो कोई संवाद स्थापित हो नहीं सकता। तो सबसे पहला काम हो कि भारत की सरकार इस बारे में पहल करे और किसान भी उसका स्वागत करे और भविष्य में एक अच्छे, एक संरचनात्मक और पॉजिटिव डायलॉग की तरफ बढ़े। नकारात्मक पक्ष अभी जैसे हिंसा हो गई है, इससे नकारात्मकता बढ़ी है। सकारात्मकता की तरफ बढ़े, संवाद स्थापित हो और खुले माहौल में संवाद स्थापित हो। जिन बिंदुओं पर किसानों की समस्या है वो सरकार ने सुनी है। करीब सरकार ने कई बार डायलॉग किया है, 10 से ज्यादा बार डायलॉग हो चुका है। तो अभी भी एक ही रास्ता बचता है, एक नए माहौल में डायलॉग को, संवाद को फिर स्थापित किया जाए और एक भरोसे के माहौल में खुले मन से डायलॉग किसान भी करे और सरकार भी करे। भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय कांग्रेस और उसकी कुछ सहयोगी पार्टी के अलावा कोई ऐसा नहीं चाहता है कि किसानों के बीच भरोसे का माहौल नहीं बने, किसानों के बीच भरोसे का माहौल बने। सरकार उनके प्रति कृत संकल्प है। देश किसानों का है। हम बचपन से पढ़ते आए कि भारत के एक कृषि प्रधान देश है, भारत किसानों का देश है। तो किसानों के प्रति कभी कोई दुर्भावना किसी भी पार्टी के मन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस ऐसी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करती हो, उस भाषण में जाती नहीं हो, कांग्रेस हमेशा ऐसा काम करती रही, वो किसानों को उकसाती रही। डायलॉग किसानों और भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है उसके बीच होनी है। अगर जिद पर अड़े रहेंगे तो संवाद की स्थिति बनेगी नहीं। और विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए कि ठीक है, कोई कानून बना है, किसी को असहमति हो सकती है, लोकतंत्र में असहमति का सिद्धांत है, असहमति हो सकती है, लेकिन संवाद से उन असहमतियों पर सहमति बनाई जा सकती है। तभी ये देश आगे बढ़ेगा। चाहे किसान हो चाहे सरकार, दोनों को साथ बैठकर जरूर बातचीत करनी चाहिए और खुले माहौल से बातचीत करनी चाहिए। मैं एक बार वापस अभिमन्यु कोहर के पास ये सवाल लेके जाती हूँ। फिर अभिमन्यु कोहर वो कह रहे हैं कि संवाद ही आगे है बढ़ने का रास्ता, लेकिन आप अड़ नहीं सकते। अब तो हिंसा भी हो गई, 2 बार हो चुकी है, आज भी हमने देखा, 26 तारीख को भी देखा। कहीं तो थोड़ा हमको एडजस्ट, नेगोशिएट, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए तन्वी जी, पहले तो मैं सुदेश वर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप और आपकी पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसी है क्या? आप ये बताएंगे कि कौन किसान है और कौन किसान नहीं है? आप ये बताएंगे कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं है? आपने सर्टिफिकेट देने का ठेका ले रखा है क्या? आप हर चीज बताएंगे। आप कह रहे हैं किससे बात करी जाए, कौन किसान नेता है कौन नहीं है। हमारे जो सीनियर किसान नेता है उनका पूरा जीवन बीत गया, 5 दशक हो गए उनको किसानों के लिए संघर्ष करते हुए। बहुत बार जेल गए हैं, बहुत बार लाठियां सही है। और जब वो किसान नेता मीटिंग के अंदर बात करते हैं विज्ञान भवन के अंदर, मैं खुद उस मीटिंगों में मौजूद रहा हूं,
जब मीटिंगों में वो बात करते हैं तो ना तो सरकार के मंत्रियों के पास कोई जवाब होता है और ना ही सरकार के अधिकारियों के पास कोई जवाब होता है। और मैं चैलेंज करता हूं सुदेश वर्मा जी को, यदि सुदेश वर्मा जी चाहे तो इतने बड़े टेलीविजन चैनल मिरर नाउ पे बैठ के 3 कृषि कानूनों या एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर मेरे से खुली बहस कर सकते हैं। मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं। तन्वी को बोलिए एक डिबेट करिए, इसमें मैं भी आता हूं, आप भी आइए कृषि कानून के ऊपर और जनता को डिसाइड कर दीजिए कौन सही बोल रहा है। ठीक है ना, मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। आप टिकैत साहब को लाना चाहते हैं, टिकैत साहब को ले आइए, एक एक बिंदु पर होगा, एक एक बिंदु पर बात होगा किसानी और कोई भी हट नहीं करेगा। बोलिए, तैयार है इस पर आप? कोई भी हट नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा कि वो सही है, हम बात करेंगे बिंदुओं पर। आप बताइए आपने कैसे बोला थोपा गया? हम तो एक आपको पहले लूट दे रहे हैं, मत यूज करो भाई, पहले लूट मत यूज करो, पुराने सिस्टम पर यूज करो। किसने मना किया? Okay, Mr. Sudesh Verma, the voice will get cut if you both talk together because of your connections. Let him respond to what you're saying. हाँ. वहां पे मक्का जिसका सरकारी रेट 1850 रुपया क्विंटल है, बिहार में 500 से 600 रुपया क्विंटल बिक रहा है, कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि किसान की तरक्की होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, ये किसान की तरक्की नहीं, बिहार के किसान की बर्बादी हो गई। इस बात का कौन जवाब देगा कि 2011 में जो मुख्यमंत्री एमएसपी गारंटी कानून की बात करते थे, आज उन्होंने वो कहते हैं कि वो लागू नहीं कर सकते हैं। नहीं, इस बात का जवाब कौन देगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री था कि C2 प्लस 50% फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी देंगे, लेकिन 2015 फरवरी 2015 में आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने कि आप C2 प्लस 50% फॉर्मूले को लागू नहीं कर सकते हैं। तो जो आज ये किसान समाज और सरकार के बीच में अविश्वास का माहौल है, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं अब तक की सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो। इन राजनीतिक पार्टियों ने किसान समाज को इतनी बार ठगा है, इतनी बार छला है कि आज के दिन किसान समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और सुदेश वर्मा जी बिल्कुल रख लीजिए। हाँ, नहीं, लेकिन अभिमन्यु कौर, बिफोर बीजेपी आपको जवाब दे, मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी का लॉ नहीं लाया जाएगा तब तक समस्या हल नहीं होगी, लेकिन 1.5 साल है ना अभी आपके पास चर्चा करके, डिस्कशन करके एक सोल्यूशन पे आने का। वो 1.5 साल का ऑफर क्यों नहीं लिया जा रहा है? 1.5 साल तक नए लॉज नहीं लगेंगे, जैसी अभी है व्यवस्था वो चलती रहेगी, तो क्या फिर प्रॉब्लम है? तन्वी जी, सरकार ने फाइनल प्रपोजल दिया 2 साल का। हम एक बात कहते हैं कि जब सरकार ये कह रही है कि 2 साल तक सस्पेंड रहेंगे, यानी 2 साल तक लागू नहीं होंगे, तो हम आज ये कह रहे हैं कि आप रिपील कर दीजिए। 2 साल के अंदर चर्चा करके फिर से दोबारा इन कानूनों को बना लीजिएगा। किसान संगठनों से चर्चा कीजिए, एक्सपर्ट से चर्चा कीजिए, क्योंकि जो अब की बार ये अध्यादेश लाए गए, इससे पहले चर्चा नहीं हुई। एक आरटीआई के जवाब में ये बात स्पष्ट हो गई कि सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सरकार ने किन किसान संगठनों से बात की इन कानूनों को बनाने से पहले। तो हमारा ये कहना है, ठीक है, अभी बीजेपी को जवाब देने दीजिए। हाँ तन्वी, पहले बात तो ये कि मैं इनके चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। आप ऑर्गेनाइज करिए डिबेट, एक एक पॉइंट पर डिबेट होगा और लोग डिसाइड करेंगे कौन सही बोल रहा है, और फिर जब बात होगी कि सही क्या है गलत क्या है, इस पर नहीं होगी कि नहीं कानून वापस करो तभी बात होगी, और एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी कि किसानी पर आप सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। आपके टिकैत साहब से भी डिबेट हो चुका है टेलीविजन पर, पॉइंट पर कोई बात नहीं करता होता, कानून वापस करो तभी करेंगे। टिकैत साहब का प्रॉब्लम क्या है? जो बैठे हुए यही प्रॉब्लम है, वो नहीं बोल रहे कि कानून को बारे में चर्चा करो, वो बोल रहे हैं कानून वापस तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। अरे भैया, पहले स्टेट हो क्या कर रहे हो आप? आज आपने सुना, सुन लीजिए, आज अपने राष्ट्रपति जी को सुना, राष्ट्रपति जी ने क्या बोला सुना आपने? ये कानून एम्पावरमेंट का कानून है। जब सरकार ये बोल रही है तो आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि कानून वापस नहीं होगा। कानून को अभी अबेंस में रखा गया है, इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग किसानों की सरकार है। किसान के लिए बात करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है हमें। बहुत से किसान हमारे पार्टी के खुद के हैं, आप जान लीजिए, बहुत बड़ी पार्टी है हमारी। और मैं आपको बता दूं, हर एक से बात होगा, सुप्रीम कोर्ट भी आपको मौका दे रहा है, आपके ऊपर आप ये मौका चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये मत बोलिए। हम तो आपसे बताया चर्चा, सारे बिल्कुल सही बताया हमारे जेडीयू के प्रवक्ता साहब ने, हम लोग चर्चा करेंगे। आप तैयार हैं चर्चा के लिए? 11 राउंड ऑफ बात हुए, उसमें आप चर्चा नहीं किया है, और सुदेश वर्मा तैयार है। बाय द वे, मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, मैं आप दोनों को
आप दोनों को और चौधरी मलिक को और सत्य प्रकाश को सबको ये बात बता दूं कि आज भी हम इसी शो में थोड़ी देर में सिर्फ फार्म लॉस पे डिबेट करने वाले, और उसमें तो मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी नहीं बुला रही हूँ, सिर्फ फार्मर्स और दोनों तरफ हर एक लॉ की अच्छाई बुराई, किसको क्या प्रॉब्लम है, सही गलत, वो डिबेट होगी। और अगली वाली में होंगे अभिमन्यु कोहर और सुदेश वर्मा, और हम डिबेट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट on these 3 farm laws. I am completely out of time. Thank you so much for joining us this evening. Viewers, one thing is clear, that this protest is not going to now die out anytime soon. Despite the violence, despite the police crackdown, the closing in, the additional security, the blocking of roads, cutting off of electricity and supply for water and food, the farmers have decided that they are going to continue with their protest. They are adamant. Something's got to give. A conversation has to happen. Otherwise, we will never reach a solution. Perhaps it is time for government to start considering on what can be done for the demand for an MSP law and start taking that part seriously. For until then, we will continue, hopefully, not see what happened today. We continue to see peaceful protests and not the kind of chaos that unfolded today at the Delhi borders. Thank you for joining us. On the other side, the political debate on the farm laws. Stay with me.